Hello, this is the lecture number 10 for the chapter 3-dimensional geometry for the class 12th, and we are doing the miscellaneous exercise of it. In question number 9, you have to find the shortest distance between the two given lines. Q lines, which is 6i plus 2j plus 2k plus lambda times I minus 2j plus 2k, and the other is minus 4i minus k plus mu times 3i minus 2j minus 2k. To find the shortest distance between the two lines, we know that the formula is a2 minus a1 का dot b1 cross b2 upon मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2. सिंपली ये फॉर्मूला लगना है. a1 कितना है हमारे पास? ये आपके पास a1 है 6i प्लस 2j प्लस 2k. b1 कितना है आपके पास? माइनस I minus 2j plus 2k. This is b1. a2 is minus 4i minus k, and b2 is 3i minus 2j minus 2k. Use this formula to find the shorter distance between the two lines. You know it how to do it, and it should be positive. ये positive होगा. Now in question number 10, what you have to do? You have to find the coordinates of the point passing through the points 5, 1, 6 and 3, 4, 1, and you have to find the coordinate it crosses the YZ plane. So equation of the line passing through these 2 points is x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. So it will be x minus 5 upon minus 2, y minus 1 upon 3, z minus 6 upon minus 5 on yz plane. हमें पता है yz plane पर x की वैल्यू 0 होती है, तो 0 minus 5 upon minus 2 equal to y minus 1 upon 3 equal to z minus 6 upon minus 5. You will get the values of x, y, z. Oh, sorry, y and z. So 5 upon 2 equal to 1 upon 3, and 5 upon 2 is equal to z minus 6 upon minus 5. इसको इसके इक्वल रखिए, इसको इसके इक्वल रखिए, तो it will be 15 upon 2 plus 1 is equal to y, and minus 25 upon 2 plus 6 is equal to z. So the value of y is 17 upon 2 is equal to y, and it will be how much? It will be 12 minus 25, that is minus 13 upon 2 is equal to z. So therefore the coordinate of the point is 0, 17 upon 2 and minus 13 upon 2 is the point where this line passing through the points crosses the YZ plane. On the YZ plane, the value of x is equal to 0. Similarly is the question number 11. In question number 11, the equation is passing to the line is passing to the point 5, 1 and 6 and 3, 4 and 1, and it is crosses the ZX plane. On ZX plane, the value of y will be equal to 0. The equation of line passing through these 2 points is x minus x1 upon y2 minus y1, x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. So x minus 5 upon 2 is equal to y minus 1 upon 3 is equal to z minus 6 upon minus 5. On ZX plane, y will be equal to 0. So put it here, y will be equal to 0. 0 minus 1 upon 3 is equal to z minus 6 upon minus 5. So put it, x minus 5 upon 2 is equal to minus 1 upon 3. Minus 1 upon 3 is equal to z minus 6 upon minus 5. So find the value of x as it will be 5 minus 2 upon 3, and the value of z is 5 upon 3 plus 6 is equal to z. So it will be, x will be equal to 1 upon, it will be 15 minus 2. 15 minus 2 is 13 upon 3, and the value of 18 or 3, it is 23 upon 3, the value of z. So there the point is 13 upon 3, y की value 0 होती है, and 23 upon 3. So this is the point where the line
passing through these 2 points crosses the zx plane, because on zx plane the value of y is equal to 0. Now let us take the question number 12. Again the equation of line is passing through 3, minus 4, minus 5 and 2, minus 3, 1 crosses the given plane, that is 2x plus y plus z is equal to 7. Let us call it this. Let us call it 1. So equation of the line passing through these 2 points is x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. So it is how much? X minus 3 upon minus 1, y plus 4 upon 1, z plus 5 upon 6. Let us call it lambda. तो x की वैल्यू हो गई माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल रख लीजिए, y की वैल्यू हो गई लैम्डा माइनस 4, z की वैल्यू हो गई 6 लैम्डा माइनस 5. विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो यहाँ पर x y z की वैल्यू रख दीजिए. 2 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है? लैम्डा माइनस 4. ये x y z की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए एंड फ्रॉम दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. इससे आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा माइनस 4, 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 7. तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा दैट इज 5 लैम्डा यू विल गेट एंड द 7 प्लस 5 12 प्लस 4 16 10. सो द लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 2. ठीक है, तो कहाँ पुट करेंगे? आपको पॉइंट पता करना है. पुट इन 1 कहाँ है? यहाँ रख दीजिए, बल्कि लेट अस कॉल इट 2 में रख दीजिए. You'll get the coordinates of the point where the plane passing through these 2 points crosses this given plane. इस plane को pass कर रहा है. So this is the question number 13. ठीक है, 13 है ये. तो easy question थे तीनों. All these 3 questions are somewhat easy. Now question number 13. Find the equation of the plane passing through this and perpendicular to each of the plane. 13. Equation of the plane passing through the point 1, minus 1, 2, 3 will be a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0. ये प्लेन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रखी है, जिसकी डायरेक्शन रेशो हमारी कितनी है? ए बी सी है. नाउ इट इज दिस इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द प्लेन, दैट इज x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 एंड द सेकेंड इज 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0. अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंडीशन इससे और इससे आप यूज करिए. पहले इससे तो ये हो जाएगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 विल बी इक्वल टू 0. जब हम इससे करेंगे a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0. तो ये क्योंकि परपेंडिकुलर है इन दोनों के, तो इसका और इसका परपेंडिकुलर कंडीशन, इसका और इसका परपेंडिकुलर कंडीशन, इसका डायरेक्शन रेशो ए बी सी है, इसकी डायरेक्शन रेशो 1 2 3, इसकी डायरेक्शन रेशो 3 3 1. तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 इज इक्वल टू 0, c1 इंटू c2 सॉरी a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0. अब आपके पास ये 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं? दिस विल बी सॉल्व लाइक दिस. सीट वे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं इसको. ये होता है a अपॉन इज इक्वल टू माइनस b अपॉन इज इक्वल टू c अपॉन. ये होता है a के लिए दिस इंटू दिस, a को निकालना तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 2 माइनस 9. b के लिए ये b को छोड़ दे तो दिस इंटू दिस दैट इज 1 माइनस 9, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. और c का निकालना है, ये आ जाएगा 3 माइनस 6. ठीक है, और इसको आप लैम्डा के इक्वल रख लो. तो a की वैल्यू हो गई माइनस 7 लैम्डा, b की वैल्यू हो गई 8 लैम्डा और c की वैल्यू हो गई माइनस 3 लैम्डा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व होता है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द मिसलेनियस
एक्साइज, ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। तो कैसे, व्हेन वी हैव टू इक्वेशन, थ्री वेरिएबल, a अपॉन माइनस b अपॉन c अपॉन, तो a का निकालना है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, b का निकालना है, b को छुपा दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, c का निकालना है तो इसको छुपा दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इससे इक्वल टू लैम्डा रख करके, और कहाँ पुट करेंगे, पुट इन द इक्वेशन नंबर, कौन सी थी जिसमें आपने रखा था, 1, यहाँ रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर -7 लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पर 8 लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ पर -3 लैम्डा, लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, you'll get the equation of the plane. So this is the question when we have two equation in 3 variables, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करते हैं, a अपॉन माइनस b अपॉन c अपॉन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 था। So in question number 14 what we have, if the points, ये दे रखा पॉइंट 1 1 p और एक और पॉइंट है -3 0 1, ये कह रहा है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन प्लेन, ये इक्वल डिस्टेंस है एक गिवन प्लेन से, तो इनका प्लेन की इक्वेशन है कितनी है, मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूँ, x4x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस इक्वल दे रखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के d1 इजिकल टू d2, क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c माइनस 12 इंटू z1 कितना है p प्लस 3 का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये d1 हो गया डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द गिवन पॉइंट, किसके इक्वल रख लो, इस पॉइंट से इसका कितना हो गया, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस z इंटू z1 प्लस का 3 अपॉन मॉड आएगा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो d1 और d2 को एक दूसरे के इक्वल रख लिया, मतलब इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकाला, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकाला, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लिया, ये आपका कैंसिल हो ही जाएगा। 3 प्लस 4 माइनस 12p प्लस 3 का मॉड किस लिया जाएगा, माइनस का 9 प्लस का, बल्कि ये है माइनस का 12 प्लस 3 का मॉड, यह आ जाएगा 12p अपॉन, ये कैंसिल हो ही गया, ठीक है। एंड कैसे सॉल्व करना है इसको, 10 माइनस 12p, जब एक जगह से मॉड हटाते हैं तो दूसरी साइड प्लस माइनस का साइन आता है, ये हो जाएगा आपका माइनस का 12 माइनस का 21 प्लस का 3 माइनस का 18, एक बार प्लस और p की दो वैल्यूज आ जाएंगी, you'll get the values of p। तो ये जो प्लेन था इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस था, तो इस प्लेन से इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल के एक दूसरे के इक्वल हमने रख दिया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज, जब हमने एक दूसरे के डिस्टेंस इक्वल रखा है, एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज, यहाँ पर आपका आ रहा है, सी द कैलकुलेशन, एक बार इसका कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 13 प्लस 4 माइनस 12p प्लस 13 है ये, इट इज इक्वल टू 13, ये हमने गलत लिख लिया, ये यहाँ पर इक्वेशन की 13 है, ये कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा, इट इज 13, ये 13 है, कैलकुलेट करने पर यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड में आएगा 8, सॉल्व करने पर ये 8 आ रहा है, कितना आ रहा है, यू आर गेटिंग दिस 8, प्लस माइनस 8 रखेंगे तो p की वैल्यू आपके पास 1 और p की वैल्यू आपके पास आ रही है 7/3। कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, 13 है यहाँ पर, यहाँ 13 आएगा, यहाँ 13 एंड कैलकुलेटेड। Yes, after that we have question number 15। तो 15 में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन। तो पहले प्लेन जो है मैंने उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कार्टेशियन फॉर्म में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा प्लेन भी मैं कार्टेशियन में लिख रहा हूँ, इट इज गिवन इन द वेक्टर फॉर्म 2x प्लस 3y, यू नो हाउ टू कन्वर्ट द vector form to the Cartesian form in the equation the plane passing through the intersection of this, and it is parallel to x-axis, x-axis के parallel है, and you know that
द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस इज 1 0 0। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 15। तो इक्वेशन द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इज p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना आता है ये। वी डन इट अर्लियर ऑल्सो। कलेक्ट द लाइक टर्म्स। सो x में कितना आ रहा है 1 प्लस 2 लैम्डा, y में आ रहा है 1 प्लस 3 लैम्डा, ये रहा 3 लैम्डा, z में आ रहा है 1 और ये माइनस लैम्डा, और कांस्टेंट में आ रहा है -1 प्लस 4 लैम्डा। नाउ दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जिसके डायरेक्शन रेशोज हैं 1 0 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशो 1 0 0 होते हैं। तो जब कोई प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इट मींस इट्स नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर है तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 0 के इक्वल होगा। ये रहा a1 b1 c1, ये रहा a2 b2 c2। तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -12। वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज -12 इन क्वेश्चन नंबर 15। -12 आ रहा है। जब इसको आप किस में पुट करेंगे? पुट इन दिस इक्वेशन नंबर, दिस इज लेट अस कॉल इट 1। यहां पर रख दो, आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू यहां रख लिए -12। You'll get the equation of the plane passing through the intersection of these two and which is parallel to the x axis। जब कोई प्लेन x axis के पैरेलल है तो उसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, जिसकी डायरेक्शन रेशो 1 1 0 होती है। तो प्लेन की इक्वेशन ये आगे दो प्लेन से इंटरसेक्शन से, जिसके डायरेक्शन रेशो 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जिसकी डायरेक्शन रेशो 1 0 0 है। इट्स नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगेगी। ओके, वेल डू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।